हेलो गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा कोचिंग एकेडमी में। मैं हूं नामदेव सर। आज हम देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय टू मेथड्स, factorization method and quadratic formula method, and then nature of the roots। तो हम सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज देखेंगे इस चैप्टर के सभी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a quadratic equation is the form, a quadratic equation, a quadratic equation in the a quadratic equation in the variable x is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers, where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. So the quadratic equation in the variable x is of the form ax square plus bx plus c is equal to 0। इसमें हमने एक चैप्टर सेकंड देखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 2 होती है, वेरिएबल्स की डिग्री 2 होती है। और यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, quadratic equation is the equation in which it has a single variable, only one variable x, and highest degree is 2, highest power of the variable is 2, so this is called as quadratic equation। Quadratic equation has a two sides, LHS and RHS। So we will see here some examples of quadratic equations, examples of quadratic equation, examples of quadratic। Before that you will see some points, the highest power of variable, हाईएस्ट पावर क्या होता है वेरिएबल का, x होता है। हाईएस्ट पावर क्या होता है वेरिएबल का, 2 होता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन इज 2। दूसरा पॉइंट क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन ओनली वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है x x। इट contains single variable, it contains single variables। Now we will see examples of quadratic equation। Examples are of quadratic equations, examples of quadratic equations are 2x square plus x minus 300 is equal to 0। Second example, 2x square minus 3x plus 1 is equal to 0। Then 4x minus 3x square plus 2 is equal to 0। And next example is 1 minus x square plus 300 is equal to 0। These are the examples of quadratic equations। See here in these examples, highest power of the variable is 2, here 2x square, here 4x minus 3x square, variable is single variable xx, and power is 2, means the power of the highest power of the given variable is 2, that is the degree of the quadratic polynomial is 2।
Now we will see the standard form of the quadratic equation. This is the quadratic equation. Now we will see standard form. Standard form. Now we will see the standard form. Now just we have seen the equation which has the highest degree is 2. Standard form is ax square plus bx plus c is equal to 0. Quadratic equation has two sides, left hand side and right hand side. And in the quadratic polynomial, we have written the given term in the descending order, descending of their orders. So ax square plus bx plus c. So see, this is the standard form of quadratic polynomial. Quadratic equation का standard form है where and इसमें यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ए नॉट इक्वल टू 0. इसमें क्या नहीं होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए. अगर वो ये 0 हो जाता है तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. ओके, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स. ये क्या है, रियल नंबर्स है. ओके, एग्जांपल्स हमने देखी है. स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे कहते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x. स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह लिखते हैं where abc are real numbers are not equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या खासियत है इसकी, हाईएस्ट फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल का 2 होता है एंड इट हैज ओनली सिंगल वेरिएबल. सो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. ओके, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ quadratic solution of quadratic equation. Solution of quadratic equations. Quadratic equation can be solved by two methods. Quadratic equation two method का यूज करके सॉल्व करते हैं. फर्स्ट मेथड इज बाय फैक्टराइजेशन मेथड. बाय फैक्टराइजेशन मेथड. by factorization method. And second method है quadratic formula method. Quadratic formula method. ओके, तो दोनों मेथड का यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे विद एग्जांपल्स. ओके, तो देखते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड. फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0. बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. रूट्स मींस सॉल्यूशन. ओके, वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. we have the given equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0. अब इसमें देखिए जो मिडल टर्म है वो हमें मिलना चाहिए. इसके लिए हमें जो x स्क्वायर है उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. क्या होगा, 2 into 3 is equal to 6. 2 into 3 is equal to 6. इसमें क्या होगा, हमें मिडल टर्म मिलना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन करने से हमें मिलता है 6. एडिशन करने से हमें मिडल टर्म मिलना चाहिए. 2 3 2 प्लस 3 कितना होगा, -2 -3. यहाँ पे x, यहाँ पे x. ये दोनों की अगर हमने एडिशन की तो क्या मिलेगा हमें, -2 -3 क्या होगा,
5 और x एज इट इज। दोनों पे मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 3 क्या होगा 6, -3 मल्टीप्लाई -3 कितना होगा +6। इस तरह से हमें मिडिल टर्म यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी लिखते हैं इसमें hence 2x square -2x -3x +3 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, पहले टू टर्म्स में से हमें 2 कॉमन लेना है और x है तो x भी हम कॉमन लेंगे। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ टर्म में से। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लिए हमने, उसके बाद में x भी कॉमन लिया है तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, x -1। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है और 3 भी कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, x यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, -1 इक्वल टू 0। अब जो ये कॉमन टर्म से इसको हम ले लेंगे x -1, दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे जो कॉमन है यहाँ पे हमने लिया है 2x, इसको लिखेंगे हम। और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से हमने जो कॉमन लिया है -3, उस -3 को माइनस साइन के साथ लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे, क्या होगा फिर x -1 इक्वल टू 0 और 2x -3 इक्वल टू 0। अभी हम -1 को ट्रांसफर करेंगे ये रेजिस या इसमें, तो क्या होगा -1 का क्या होगा +1, ये क्या होगा 2x इज इक्वल टू -3 का क्या होगा +3 होगा। ओके, x इज इक्वल टू क्या रहेगा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज होगी तो डिवीजन होगा 3/2। इस तरह से हमें रूट्स मिल गए, हेंस आंसर hence the roots of the equation are x equal to 1 and x equal to 3/2. These are the two roots of the quadratic equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0. Okay. ये हमने एग्जांपल देखा है फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, अगर आप चाहते हो तो और हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, और एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द quadratic equation 6x square minus x 6x square minus x minus 2 is equal to 0। अब इसमें देखो 6 टू द क्या होगा, क्या होगा सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन। कौन से मेथड से सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर गिवन इक्वेशन नहीं है तो हमें उस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। ओके, जैसे कि -x है प्लस 6x स्क्वायर है -2 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। ऑलरेडी हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट इस पे लिखेंगे 6x स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखना है सबसे पहले, उसके बाद में हमें उसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं
फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 6 और जो कांस्टेंट है -2, ये दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करो। 6 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा, 6 2 12 -12 बराबर। अब हमें क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए -x। 4 3 कितना होता है 12, 4 3 कितना होता है 12, 4 into 3 12, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 4 को माइनस साइन देंगे और इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा फिर -4x प्लस 3x क्या होगा फिर -x। 4 माइनस 3 क्या होगा 1, 4 का साइन माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा -1x। तो इस तरह से हमें मिडिल टर्म ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है मिडिल टर्म। न्यूमेरिकल एक्स स्क्वायर का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो 6 और जो कांस्टेंट है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 12 मिला है। इस 12 को ऐसे फैक्टराइज करो कि हमें मिडिल टर्म मिल जाएगा। 4 3 12 होता है -4x प्लस 3x क्या होता है -1x। ओके, तो हमें क्या मिलेगा अभी लिखते हैं हम इसमें 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स में से हमें कॉमन फाइंड आउट करना है, कॉमन निकालना है। यहाँ पे क्या कॉमन नहीं मिलेगा, 2 के टेबल में 6 भी आता है 4 भी आता है, सबसे पहले 2 निकलेगा कॉमन, उसके बाद में x भी निकलेगा कॉमन। यहाँ से हमने x और 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2 3 x, x स्क्वायर है तो क्या होगा 1x, यहाँ पे आएगा 3x, 2x into 3x माइनस यहाँ से हमने 2 2 4 x तो ले लिया कॉमन, 3x -2 आएगा प्लस प्लस कॉमन लिया तो हमने यहाँ पे 1 ही आएगा कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा इसमें से, यहाँ पे 1 लिखेंगे +1, 3x -2 एज इट इज रहेगा। चलो दोनों इसमें सेम है कॉमन, इसको 1 ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3x -2, नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे हमने 2x कॉमन निकाला, इसको लिखेंगे 2x, यहाँ पे +1 है तो +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स है उनको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा 3x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x +1 इज इक्वल टू 0। 3x -2 उधर साइड में ट्रांसफर किया, LHS से RHS में तो क्या होगा -2 का +2, यहाँ पे क्या है 2x इज इक्वल टू +1 है तो क्या होगा -1। ठीक है, यहाँ पे x के साथ 3 क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज की तो क्या होगा डिवीजन में जाएगा तो क्या होगा x इज इक्वल टू 2/3, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, 2 क्या है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, साइड चेंज की तो डिवीजन में नहीं जाएगा, क्या होगा फिर 2, तो ये क्या हो गए x के रूट्स हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए रूट्स, हेंस द रूट्स ऑफ द quadratic equation, hence the root of the equation 6x square minus x minus 2 is equal to 0 are उसे रूट से 2/3 एंड -1/2, ये क्या हो गए रूट्स। ठीक है, तो इसी तरह अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से भी क्या करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसके पहले हम जानेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मीन्स व्हाट, क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मीन्स क्या होता है। सो
quadratic formula method. The roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are given by x is equal to b minus b plus minus and b square minus 4ac upon twice a. b is the discriminant, b square minus 4ac. यहाँ पे टू वैल्यूज होती है बराबर. तो नेचर ऑफ द रूट्स a quadratic equation has a b square minus 4ac. This discriminant b is the discriminant. इसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तो it has a two real and distinct roots. Suppose x की वैल्यू क्या है 3 है और x की वैल्यू 2 है. x की वैल्यू क्या है 3 और 2. मीन्स x की टू डिफरेंट सॉल्यूशन है, तो x की टू डिफरेंट वैल्यूज है, तो इस तरह से वैल्यूज आएगी. तो क्या लिखेंगे हम इसमें b square minus 4ac is greater than 0. It has a two distinct and real roots. अगर x की इक्वल, अगर b square minus 4ac is equal to 0 मीन्स डिस्क्रिमिनेंट is equal to d is equal to 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज क्या है सेम है. x equal to 5, x equal to 5 मीन्स इसकी दोनों वैल्यू क्या है सेम है, इक्वल है. तो क्या करेंगे आप, the given quadratic equation has a two real and equal roots. Okay, and b square minus 4ac is less than 0. अगर 0 से लेस है नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है it has a no solution. It has no solution. Okay, तो अब हम देखेंगे एग्जांपल के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे. 2x square find the roots of the equation 2x square minus 5x 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0 by formula method. By formula method. फॉर्मूला मेथड से इसको कैसे फाइंड, ठीक है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. आप लोगों को ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है. एबीसी की वैल्यू हमें इसमें पुट अप करना है और एक इन कंडीशन है नेचर ऑफ द रूट्स में. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, डिस्क्रिमिनेंट की d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac को d भी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. d इज ग्रेटर देन 0 तो दो डिस्टिंक्ट एंड रियल वैल्यूज होती है इसकी. d इज इक्वल टू 0 तो दोनों वैल्यूज क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी. और d इज लेस देन अगर 0 है मींस नेगेटिव है तो इट हैज नो सॉल्यूशन. तो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फॉर्मूला मेथड. राइट डाउन फर्स्ट गिवन इक्वेशन. सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं. वी हैव 2x स्क्वायर minus 5x plus 3 is equal to 0. ax स्क्वायर इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी होगी मेन इक्वेशन के साथ. ax स्क्वायर इक्वल टू b इक्वल टू -5 और c इक्वल टू क्या होगी 3. अब हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला. the quadratic equation formula is given by क्या है फॉर्मूला. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. अब इसमें हमें abc की वैल्यू क्या करना है प्रूफ करना है. a इज इक्वल टू क्या है 2, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू क्या है 3. सो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है फॉर्मूला में. b की वैल्यू -5 है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू कितनी है -5 होल स्क्वायर. आप b स्क्वायर माइनस 4ac को सेपरेटली भी सॉल्व करके उसमें वैल्यू पुट अप कर सकते हैं. सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको b स्क्वायर माइनस 4ac को.
माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू कितनी है 2। अब इसको सॉल्व करो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा -5 का -5 हो या +5 हो उसका स्क्वायर प्लस में ही आएगा। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 24 divided by 4 divided by 4, 5 plus minus under root 25 minus 4 that is 1 divided by 4 अंडर रूट 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही होगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। इसके हमें टू वैल्यूज लिखनी है। x इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस 1 अपॉन 4, दूसरी वैल्यू हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1 कितना होगा 6, 6 बाय 4, यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइड बाय 4। इस तरह से हम इसको और रिड्यूस कर सकते हैं। इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो इस तरह से हमें टू वैल्यूज मिली है रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। Write down first given equation 2x² - 4x + 3 = 0। सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन लिखना है। इसको अगर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c के साथ अगर कंपेयर किया तो हम a b और c की वैल्यू लिख सकते हैं। बराबर, तो a की वैल्यू कितनी होगी a = कोएफिशिएंट ऑफ x² मींस a की वैल्यू 2, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा विद साइन, वो वैल्यू हो जाएगी b, b = -4, और जो कांस्टेंट टर्म है वो वैल्यू होगी c। ठीक है, a = 2, b = -4 एंड c = 3। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर हमने कंपेयर किया तो हमें एबीसी कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल जाती है इस तरह से। ठीक है, ओके। तो अभी हमें डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, d की वैल्यू पूछिए, डिस्क्रिमिनेंट d, hence d = b² - 4ac। b कितना है -4, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3, इज इक्वल टू 4 -4 स्क्वायर क्या होगा -4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 16 + 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, ना होगा 12, इज इक्वल 16 - 12 कितना होगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा, सॉरी 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, क्या होगा फिर यहाँ पे -8, क्या आएगा -8। तो d इज इक्वल टू इक्वल है क्या नहीं है, क्या है d इज इक्वल टू d इज लेस देन -8, d इज लेस देन 0, क्या है d इज लेस देन, hence d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0।
b is less than 0. So क्या करेंगे हम, it has no real roots, hence the quadratic equation has no real roots, has no real roots. Okay, एक 1 आवर एग्जाम्पल देखेंगे हम, और इस टाइप के एग्जाम्पल आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x square minus 2x plus 3 is equal to 0, and hence find the nature of roots. Find the nature of roots, find nature of its roots and find then if they are real, और उन्हें फाइंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिख देते हैं, 3x² minus 2x plus 1/3 is equal to 0, compare with ax² plus bx plus c is equal to 0। तो ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। हेंस a is equal to x² का कोएफिशिएंट क्या है 3, b का कोएफिशिएंट क्या है -2, b की वैल्यू क्या होगी फिर -2, कांस्टेंट टर्म c कितना है 1/3। ठीक है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट मींस d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। d इज इक्वल क्या लिखते हैं हम, d इज इक्वल टू b² minus 4ac। d की वैल्यू कितनी है -2, होल स्क्वायर माइनस 4, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 1/3, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 1 -4 इज इक्वल टू क्या होगा 4 - 4 0। सो b इज इक्वल टू क्या है 0। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे हम, हेंस the quadratic equation has a equal roots, the quadratic equation has a equal real roots। okay, so we can write here, हम लिखेंगे यहाँ पे hence the equation, hence the quadratic equation, hence the quadratic equation has real has a real hence the quadratic equation has a real and equal roots, has a real and equal roots। फाइंड देम बोला है तो हमें क्या करना है, उन्हें फाइंड भी करना है। तो हम इसे इरेज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, इस प्रॉब्लम को इरेज कर लेते हैं। x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। इसमें अंडर रूट b कितना मिला है हमें, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 मिला है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है -2, माइनस साइन ऑलरेडी है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 0, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0। 2a 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3, 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा फिर x इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा +2, कितना होगा ये +2 होगा, प्लस माइनस ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इधर का ये कितना होगा 2 3 6 क्या होगी फिर 2 1 2 2 3 6, तो x की तरफ तो कितने में निकल गए हमें 1/3 और x इज इक्वल टू 1/3। hence the quadratic equation hence the quadratic equation has roots
or is written as the roots, has a real and equal 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 roots, and hence they are, and hence they are 1 by 3 and 1 by 2 रियल एंड इक्वल रूट्स हमने फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के 3 एग्जांपल देखे हैं। पहले इसके हमने रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा है। दूसरे एग्जांपल में हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको देखा है। डिस्क्रिमिनेंट का क्या है, अगर d इज लेस देन 0 है तो देयर इज नो रियल रूट्स, ये हमने कंडीशन देखी है इसके पहले वाले एग्जांपल में। उसके बाद में इस एग्जांपल में क्या है, d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 है तो क्या है, टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो क्या होते हैं, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। दोनों x की वैल्यूज क्या होती है, अलग अलग होती है, उसको कहते हैं हम टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इस इक्वेशन में d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। x की दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है यहाँ, x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल देखे। आज की वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला देखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन देखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 फॉर्म में देखा है। उसके एग्जांपल देखे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा है। उसके बाद में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो मेथड से फाइंड आउट करते हैं, एक बाय फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरी है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड में आपको फार्मूला याद करना है, ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम नेचर ऑफ रूट्स देखा हमने। नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इज d² - 4ac इक्वल है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, नो सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल देखेंगे, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ओके, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल नंबर 2 है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। सो इस टाइप के एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछ लिए थे। सो x minus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3। 2x minus 2 whole square, इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे a minus b whole square का। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे इस फॉर्म में। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म मींस 2 इनटू क्या होगा, 2 इनटू x इनटू 2 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 2x को RHS से LHS में लेके आया तो क्या होगा, प्लस 2x का माइनस 2x प्लस 5 माइनस 3 को इधर लाए तो क्या होगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस
4x प्लस माइनस 2x क्या होगा -6x प्लस 8 5 प्लस 3 क्या होगा 8 इज इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये जो इक्वेशन है हमें किस फॉर्म में मिला है हाँ it is in the form of it is in the form of standard quadratic equation form ax square plus bx plus c is equal to 0 ये जो इक्वेशन है हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिला है बराबर है इस तरह से क्या कहेंगे हम hence the given equation is the quadratic equation hence the given equation is the quadratic equation ओके तो इस तरह से एग्जांपल आपको पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में का एक एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू